Hello students, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, in the previous videos I have asked two questions and the students those who have given the answer that is correct answer. My first question was student that when a non-metal oxide non-metal oxide its nature is mostly acidic. What is its nature? Acidic. And metal oxide beta, what I told the nature? Basic. So I ask which I have given some name among this, which one is which metal oxide which non-metal oxide is acidic. So there is given only carbon. So the right answer is carbon. And the next question was that second, name a non-metal which is in liquid state, that is bromine. Non-metal, there are non-metals are also. So non-metals are mostly in the solid, liquid and gaseous states. तीनों states में मिलते हैं students. Now but in liquid state there is only one non-metal. So what is that non-metal which is in liquid state? That is bromine. So the correct answer is this one. So the student's name I am announcing who have given me the first response, and that is correct also. First is student Mehak. Second, Ravika. Third, Nishant. Fourth, Rishika. Fifth, Abhi. Sixth, Mayank. So these are the students whose answer was very correct. So students, congratulations all the students who have they have studied the videos properly and the answer was correct. In this video also same I will ask the question, so watch it properly. Now students, in the previous videos what I told that metals plus ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहे थे. ओके, कोई भी मेटल है कोई भी ऑक्साइड बना सकता है, MO2 M2O कोई भी मेटल्स का. ठीक है, वो क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? मेटल ऑक्साइड. लाइक सोडियम प्लस ऑक्सीजन, व्हाट दे विल मेक स्टूडेंट? sodium oxide. But if I will tell you the reactivity of these metals, we have taken many few in the activities. There is given the name of the metals, that is sodium, aluminium, zinc, magnesium, then iron, then lead, copper. So these are some samples given and told that we will find the reactivity. स्टूडेंट, रिएक्टिविटी हमें कैसे पता चलती है? हम सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखा. नाउ वी विल सी अमॉन्ग दिस वन ऑल which metals react fast. Then we will see the reactivity with, today we will see the reactivity with water. वाटर के साथ कौन सा सभी. अब व्हेन वी हैव सीन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, जब हमने स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ देखा, वी गेट ओनली द क्लियर पिक्चर ऑफ सोडियम, कि सोडियम विग्रसली किसके साथ रिएक्ट हो गया था? ऑक्सीजन, एंड मेक सोडियम ऑक्साइड. एंड सेम मैग्नीशियम भी रिएक्ट हो गया था. उसके प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनके ऊपर स्टूडेंट्स. दिस प्रोटेक्टिव लेयर को जब हमने सैंड पेपर से रब किया, देन we will start burning this magnesium ribbon and make magnesium oxide. So it means sodium is, what I have told, it means sodium student is more reactive because it react vigorously. Then we have seen magnesium, and then aluminum also react, but comparison to the magnesium it take time because it also have a protective oxide layer. और ये protective oxide layer उसको फर्दर ऑक्सीडेशन लेट होने देगी, वो हेल्प करेगी उसको फर्दर कोरिजन ना हो उसका. सो
जो ऑक्साइड लेयर है वो प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे एल्यूमिनियम एक ऐसा, अगर सबसे मोस्ट एल्यूमिनियम देखा जाए ना बेटा, एल्यूमिनियम ही सबसे मेटल ऐसा है जिसके ऊपर ऑक्साइड लेयर क्या करती है उसको, अदर्स भी है बट बेस्ट कौन सा माना जाता है, एल्यूमिनियम। इसकी जो लेयर होगी वो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्या करेगी स्टूडेंट, इसको प्रोटेक्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग से हम और प्रोटेक्टिव थी। अभी तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थिन लेयर आती है उसके ऊपर, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके स्टूडेंट थिन लेयर आती है, ओके। बट इस एनोडाइजिंग प्रोसेस से थिक लेयर कितनी थिक लेयर आ जाएगी, और जिससे उसको प्रॉपर फर्दर ऑक्सीडेशन कोरिजन नहीं होगा, एंड वी विल गिव द other color also. So I will explain this one also later, but we have seen in the previous one. So after sodium we will not get any clear picture which is more reactive and which is less with the oxygen. Now we will see with the help of this water also which one is more reactive or less. So students, we have taken the samples in the previous videos. Here one activity is performed, that let we will see this one ki how metals react with water, okay, cold water, then how they will react with the hot water also, okay, react with cold water, then after some time they will react with the, some do not react with cold water, they react with the hot water, but some do not react with cold and hot water, they will react with the steam. वो किससे रिएक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, स्टीम। एंड कुछ ऐसे मेटल्स भी होंगे, what will happen, they start floating after some time. metals जब वाटर से रिएक्ट करेंगे, metals when react with water we will see they will start floating also. So what is the question students, एग्ज़ाम में जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, इसे जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी है, व्हाट वाज द क्वेश्चन, लाइक आपको दे दिया सोडियम, ओके, they have given you sodium, then one metal name they will tell you magnesium, then one aluminium, okay, and then they will give one name of the metal copper. अब इनमें से वो पूछेंगे हाउ विल यू फाइंड आउट दैट विच इज़ मोर रिएक्टिव एंड विच इज़ द लेस्ट। सो हम क्या करेंगे, उनको 4 टेस्ट ट्यूब ली, 1 2 3 4. So they will ask how will you tell that according to you, according to the reactivity series, which is more reactive, how you will find out. So we know according to the reactivity this is the more reactive, but how we will show to them in the exam. So suppose we have taken 4 test tube, I will label this name A B C D. इन 4 टेस्ट ट्यूब को लिया, इन 4 टेस्ट ट्यूब का नेम क्या लिया स्टूडेंट मैंने, ABCD. इन 4 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, कोल्ड वाटर, वट आई हैव पुट इन दिस वन कोल्ड वाटर, सभी के अंदर सेम है, ओके, इन ऑल कोल्ड वाटर इज देयर. नाउ आई हैव पुट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब सोडियम, in second test tube magnesium, in third test tube copper, okay, in fourth test tube aluminium. Do you understood? Now what I have told, that when I have put this sodium, I will explain all these reactions. ये सारी reactions मैं next इसी videos में next page पे है, मैं दिखाऊंगी आपको, but एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं बेटा कैसे ये रिएक्टिविटीज़ होती है. तो जैसे ही वाटर के अंदर हमने सोडियम मेटल को डाला, व्हाट हैपन, इट रिएक्ट वेरी विग्रसली, बिल्कुल तेज़ से रिएक्ट कर जाएगा. बट तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हो. बट नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे इस मेटल का इस कोल्ड वाटर से कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर भी कोई रिएक्ट करके कुछ नहीं, एज इट इज़ पड़ा हुआ है. सेम एल्यूमिनियम ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. इट मीन्स इन चारों में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, फर्स्ट नंबर पे हमने क्या नोट डाउन कर लिया, सोडियम स्टूडेंट. नाउ अब ये कोल्ड वाटर से तो ये रिएक्ट ही नहीं हुआ, नॉर्मल जो टेम्परेचर था वाटर का. नाउ अब हम तीनों के वाटर को क्या कर देंगे, हीट, ये भी हॉट वाटर हो जाएगा. हॉट कोल्ड से तो रिएक्ट नहीं किया, मीन्स इसको और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा, ओके, बट कॉपर और एल्यूमिनियम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स. सो सेकेंड नंबर पे कौन सा हमारा रिएक्टिव आ गया, ये तो सबसे ज़्यादा ये था बिकॉज कोल्ड से ही रिएक्ट हो गया. बट हॉट से जब हमने देखा
then only this react, magnesium, but copper and aluminium there was nothing, no reaction. Thirdly, हमने वाटर को स्टीम फॉर्म में ले आए। अब वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट? स्टीम। स्टीम मीन्स इन ए गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट से जब हमने इस मेटल्स के ऊपर गैसियस स्टेट पास की इसके ऊपर से, देन कॉपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, बट एल्यूमिनियम स्टार्ट रिएक्टिंग। सो इसके बाद हम कौन सा बच सकते? सी ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स सोडियम के बाद कोई और मेटल भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में से हमने अभी फाइंड आउट किया स्टूडेंट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिएक्टिविटी, इन चार के अंदर से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। वी आर सीइंग दिस वन। रिएक्टिविटी सीरीज में तो जैसे पहले पोटेशियम, सोडियम, फिर थर्ड नंबर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, इस तरीके से मतलब। बट इन चार के अंदर से हम देखेंगे तो वी कैन टेस्ट लाइक दिस वन ओनली। देयर इज़ वाटर, cold water, then hot water we have taken. Now these two have not shown any reactivity. So means now we have put the water become in the steam. Water को किस स्टेट में ले आए बेटा हम? हॉट वाटर के बाद उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स स्टीम में। नाउ यू विल सी एल्यूमिनियम रिएक्ट कर गया स्टीम से, बट कॉपर स्टिल डज नॉट शो एनी रिएक्शन विद द steam. So copper students, you will see still it does not react with the steam. So what does it show? That among this one, which in चार metals में से, in four metals में से sodium is more reactive because it react with cold water. Magnesium is slightly less reactive than sodium because it react with cold water. And after magnesium, aluminium is lesser reactive than this magnesium. It react with steam, but this copper does not react with the steam also. So it is among this one, this is the reactivity series of these four. In four को अगर आ जाए reactivity series के according decreasing में इसको arrange करो, so we will arrange like this one. Now I hope it is clear. So first we have seen reaction of the metals with oxygen, बट ऑक्सीजन में वी कांट मेक द रिएक्टिविटी सीरीज। हमें पता नहीं चल रहा था कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सोडियम पूरा क्लियर नहीं हो रहा। देन वी विल टेक विद वाटर एंड नाउ वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। एनोडाइजिंग जो भी स्टार्ट किया था हमने, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, ओके। सो बिफोर दैट वन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। नाउ स्टूडेंट यू विल सी हेयर, दिस इज वन सेटअप जो मैंने अभी आपको बताया था। हेयर इट इज़ ए मेटल एंड दिस इज़ ए सोक्ड, दिस इज़ ए ग्लास, ओके। व्हाट यू हैव सीन हेयर दैट यहाँ पे ग्लास वुलन, सी हेयर ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर। हेयर इट इज़ शोन ग्लास वुल, ओके। उसको किस ग्लास वुल है, इसको हमने किसके अंदर सोक कर लिया बेटा? वाटर के अंदर। नाउ व्हेन आई हैव हीटेड दिस वन, व्हाट हैपन? When I have heated in this test tube, I have taken one metal and this is the glass wool soaked in water. Water के अंदर इस glass wool को dip करके हमने इसके अंदर लगाया. Now when I have heated this one, then the water present here, it is converted in the which form student? Steam. जब हमने इसको हीट किएंगे, ओके, जब हमने इसको हीट करेंगे वाटर को, किस फॉर्म में आ जाएगा? स्टीम फॉर्म में। Now you will see now when this metal, hot metal के ऊपर से metal also become hot, and when this steam is pass over this one, then which gas is produced student? Hydrogen gas. And you will see in this test tube, here is the water, okay, and here is the hydrogen gas collected. Now इस inverted जो ये inverted आप टेस्ट ट्यूब कह रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको, this is a hydrogen gas. Now if I will take this test tube out and arrange like this one here, जो ये अगर इसको टेस्ट ट्यूब को मैं निकालूंगी बेटा बाहर, तो वाटर तो नीचे टब में ही रह जाएगा एंड यहाँ पे गैस जो नीचे रहेगी इट विल स्टार्ट कमिंग आउट, ऊपर की तरफ आएगी. देन व्हाट विल हैपन? व्हेन आई विल ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक near the mouth of the test tube, it produce pop sound. It means when steam metals के ऊपर से पास की थी तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही थी स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस, और मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा था. So students, this one I have explained. This is one experiment given. Now I will show you the next one. We will see some reactions. Now all these reactions are very
important, so be careful. Now you will see metals. You have seen students, metals when react with water, metals जब भी water के साथ react करेंगे, they always make metal oxide and hydrogen gas is also produced. metal water के अंदर react करके hydrogen metal oxide बना लेंगे और फिर जो मेटल ऑक्साइड होगी बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड. अगर एक ही टेस्ट ट्यूब में आपको बता दूं मैं, सपोज़ यहाँ पे हमने सोडियम मेटल लिया है, ओके, एंड हेयर इज़ अ वाटर, दिस इज़ वाटर. सो जैसे ही मैं इसको सोडियम को इसमें डालूँगी, धीरे से सोडियम पहले क्या बनेगा इसमें, सोडियम ऑक्साइड. सो इसमें आपको हिसिंग साउंड से प्रोड्यूस होगी. जैसे आप सोडियम को वाटर के अंदर डालोगे, इट विल स्टार्ट, सोडियम स्टार्ट मूविंग एंड प्रोड्यूस हिसिंग साउंड, HISSING, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट. मैं यहाँ लिख देती हूँ HISSING, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी एंड मेक सोडियम ऑक्साइड. और फर्दर सोडियम ऑक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्विंग दिस वन when sodium oxide जो बन रहा है. Now student, what happen when this metal react with water? Now you understood, metal water के साथ react करके, always metal water के साथ react करके क्या बनाते हैं students, metal oxide and hydrogen. and further जो ये metal oxide water के अंदर ही further क्या बना लेगा, फिर metal hydroxide. I hope now it is clear the concept. So metal oxide and metal hydroxide. So always metals, when metals react with water, they make metal oxide first and then metal oxide water के अंदर ही metal hydroxide बन जाता है. Now if I will take this sodium and potassium, so beta sodium and potassium you will see this, they will react very fastly. So potassium, sodium react violently with cold water and large, see it is very exothermic reaction, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली, और ये ज़्यादा हीट की वजह से हाइड्रोजन क्या होगा, उसी वक्त कैच फायर, इट विल स्टार्ट, हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स बर्निंग. बिकॉज जैसे ही हमने वाटर के अंदर, दिस इज़ वाटर इन द लिक्विड स्टेट, वाटर के अंदर मैंने क्या डाला स्टूडेंट, पोटेशियम. सो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas is released, plus heat energy is also released. So sodium and this potassium react violently with cold water, and sodium and potassium, the reaction is so violent, ये इतनी ज़्यादा violent means violent, fastly reaction हो रही है, बहुत ज़्यादा violent, that जैसे ये रिएक्शन होगी साथ में क्या होगा, it will start burning also. पानी के अंदर देखो सोडियम जलने लग जाएगा. सो इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली, तो जैसे इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी स्टूडेंट, इतनी ज़्यादा हीट, एक्सोथर्मिक होगी, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होगी. हाईली एक्सोथर्मिक हो गई मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की, वो हीट से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस कैच फायर. सो व्हाट आई वांट टू से दैट सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी, एग्ज़ाम में क्वेश्चन था दैट सोडियम एंड सोडियम और पोटेशियम में से साथ में एक ही देते हैं बेटा, दोनों इकट्ठे नहीं देते. नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, हॉट वाटर. सो स्टूडेंट कोल्ड वाटर में क्या है, वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, यहाँ पे लगा देना वेरी वायलेंटली विद द हॉट वाटर, क्योंकि जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हॉट वाटर से तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. और ये एक में आपने क्या लिख दिया, कोल्ड वाटर में एक्सोथर्मिक, हॉट वाटर में आप क्या लिख दोगे, हाईली एक्सोथर्मिक. अगर पूछ ले टेल इन दिस ईयर, इस साल ये बोर्ड में क्वेश्चन था, सोडियम की रिएक्शन बताओ कोल्ड वाटर के साथ और हॉट वाटर के साथ, रिएक्शन तो सेम होगी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ की. यही सोडियम वाटर के साथ क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है दोनों में ही. बट ऑब्जर्वेशन साथ में क्या पूछ रहा था, एंड टेल योर ऑब्जर्वेशन, टेल योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या आई. सो ऑब्जर्वेशन क्या थी, जब कोल्ड वाटर के से रिएक्ट किया सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, बट व्हेन हॉट वाटर यू कैन से हाई रिएक्ट
वेरी वॉलेंटली। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? व्हेन इट रिएक्ट इट इज़ हीट, इट इज़ एक्जोथर्मिक। एंड यहाँ पे क्या लिख दोगे? इसमें आप लिख देना हाईली एक्जोथर्मिक। इस साइड आप लिख दोगे बेटा हाईली एक्जोथर्मिक, और ये क्या होगी? एक्जोथर्मिक। एंड यू विल से, ऑब्जर्वेशन का बता रही हूँ मैं, और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? जैसे ये ऑब्जर्वेशन में, ये ऑब्जर्वेशन ही हो रही है हमारी कि एक्जोथर्मिक हो रही है, ये हाईली एक्जोथर्मिक, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि दोनों का अगर आप हाथ लगा के बीकर को देखोगे एकदम बीकर गर्म हो जाएगा बिल्कुल। एंड इमीडिएटली जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इमीडिएटली जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ना स्टूडेंट्स, इट विल कैच फायर। वाई इट विल कैच फायर? बिकॉज हीट प्रोड्यूसेस वेरी much large, very high heat, large amount of heat is produced. So this high heat, because of the large amount of heat, then this hydrogen start burning. सो इट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या सकते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम में भी स्टूडेंट यू विल सी सोडियम की रिएक्शन, सोडियम के सोडियम एंड पोटेशियम की जो रिएक्शन है स्टूडेंट, सोडियम एंड पोटेशियम, आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे सोडियम और पोटेशियम को, यू विल सी पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव दिखेगा आपको कंपेरिजन टू द सोडियम। सो रिएक्टिविटी सीरीज में दैट्स वाई वी आर राइटिंग पहले पोटेशियम देन सोडियम। अंडरस्टूड? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, हाउ सोडियम और पोटेशियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो गया। नाउ वी विल सी, कोल्ड वाटर का ही दे रखा है बुक में, बट इफ़ सम टाइम दे विल आस्क सोडियम एंड पोटेशियम विथ हॉट वाटर, तो सेम चीज़ को आप हाईली बता दो बस, हाईली एक्जोथर्मिक, हाईली वॉलेंट एंड कैच फायर वेरी फास्टली कंपेरिजन टू द कोल्ड वाटर। तो इस तरीके से आपकी दोनों में थोड़ा स्लाइटली डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सो आफ्टर दिस सोडियम एंड पोटेशियम व्हाट वी विल सी स्टूडेंट्स, सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शंस के बाद, सोडियम की हमने देख ली कि सोडियम रिएक्ट विथ वॉयलेंटली विथ कोल्ड वाटर, वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा? इट विल कैच फायर इमीडिएटली बिकॉज हीट प्रोड्यूसेस हाई, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल सी कैल्शियम। ना स्टूडेंट्स, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ना कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट विद द वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम भी रिएक्ट हो जाएगा। कैल्शियम वाटर लिक्विड स्टेट में, यहाँ पे एल लिखा हुआ, इट मीन्स इन द लिक्विड स्टेट। नाउ कैल्शियम ऑल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग विद द कोल्ड वाटर, बट स्टूडेंट व्हाट हैपन, दिस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी वो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्या था? इट्स नॉट टू मच, इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी। व्हाट विल हैपन दैट इट विल कैच फायर, हाइड्रोजन गैस क्या है? कैच फायर, इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। इट इज़ लेस वायलेंट, इट इज़ लेस वायलेंट देन सोडियम एंड पोटेशियम। तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट, और यहाँ क्या था? वायलेंटली, लेस वायलेंटली इसमें है, और इसमें क्या था? वायलेंटली। दोनों में, सोडियम और पोटेशियम में क्या था? वायलेंटली। बट अगर आपको हॉट वाटर के साथ इन दोनों को दिखाना, सो हाईली वायलेंट बता देना इसको, हाईली वायलेंट। अंडरस्टूड ना? अब देखो, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। सो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? वी विल सी द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशेंट, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी कि हाइड्रोजन विल कैच फायर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज लेस, सो हाइड्रोजन गैस विल नॉट कैच फायर। तो हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस के क्या बनने लगे बेटा? बबल्स। जैसे ही आपने कैल्शियम को, सपोज दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम को आपने किसके अंदर डाल दिया स्टूडेंट? वाटर के अंदर। हेयर इज़ वाटर, वाटर के अंदर आपने कैल्शियम डाल दिया। सो व्हाट हैपन, यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। बबल्स, वो बबल्स किसके होंगे बेटा? सो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के बनने लग जाएंगे, और कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। ना वाई दिस, जैसे ही कैल्शियम को वाटर के अंदर डालोगे, कैल्शियम को वाटर के अंदर बेटा जैसे ही हम ऐड करेंगे, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। ना व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़, ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग? कैल्शियम की तरह क्या कोई, इज़ देयर एनी अदर मेटल ऑल्सो? यस, मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग लाइक कैल्शियम. So calcium and magnesium both start floating. So because the bubbles of hydrogen gas formed,
जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के यहाँ जो बबल्स फॉर्म होंगे, व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर क्या है, कैल्शियम का मेटल चिपक जाएगा बबल्स के ऊपर। स्टिक द मेटल्स ऑफ मेटल्स, बबल्स जैसे ही फॉर्म होंगे उसके ऊपर कौन सा मेटल होगा बेटा, ये कैल्शियम मेटल विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम मेटल स्टिक। सो हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, जैसे ही हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी तो स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस पे क्या ये स्टिक चिपक जाएगा एंड दिस विल दिस calcium metal start floating on the surface. I hope it is clear. So what is the reason here again, calcium start floating because bubbles of hydrogen gas form and this bubbles of hydrogen gas form, ये किसके साथ स्टिक चिपक जाएंगे, सरफेस ऑफ द मेटल। कौन सा मेटल है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम के, तो कैल्शियम फ्लोट होने लग जाएगा। अगर बबल्स हाइड्रोजन गैस के अगर मैग्नीशियम मेटल के साथ स्टिक चिपक जाएंगे then the magnesium metal start floating. So this is the reason. So ये ज़्यादा violently थी, sodium and potassium you have seen that it react violently with cold water, but sodium and potassium violently react करते, but calcium ये we have seen less violently. And magnesium student cold water के साथ react नहीं कर रहा है, magnesium किसके साथ react कर रहा है, hot water के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हमेशा किससे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम, जैसे आप रिएक्शन लिख लो, मैग्नीशियम प्लस वाटर, नाउ दिस वाटर इज़ नॉट कोल्ड, यहाँ कोल्ड वाटर था, यहाँ पे भी कोल्ड वाटर था, बट हेयर इट इज़ हॉट वाटर। नाउ व्हाट इट विल फॉर्म स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, okay, magnesium hydroxide plus hydrogen gas. Same here also you will see. Now it also start floating. Now the magnesium also start floating because what is the reason? Due to the bubbles of hydrogen gas stick to its surface. So उसकी surface के जो ये bubble है, इसकी surface पे क्या चिपक जाएगा, this metal, and then we will see at the surface this metal start floating. Which metal? जो metal हमने डाल रखा है water के अंदर, it will start floating. I hope it is clear now student. If any doubt you can, without any hesitation you can ask me in my comment box. Okay, again I am telling you, but don't do rectification beta, don't do rectification. And this is my challenge. If you have watched my videos and then take once the reading of your NCERT book, no question will be outside. This is my 100% challenge. मैं इसको आपको 100% चैलेंज करती हूँ। एक भी क्वेश्चन अगर मेरे पढ़ाई की वीडियो से बाहर आ जाए, ओके, तो आप मुझे सेंड कर देना कि मैम इस बार ये आ गया। आज तक का रिकॉर्ड है बेटा, आज तक कभी नहीं आया व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, उससे बाहर, क्योंकि एक एक चीज़ मैं साथ में बता रही हूँ। अब यहाँ पे रिएक्शन देखो आपकी, केवल कोल्ड वाटर के साथ ही बता रही थी, अगर हॉट वाटर के साथ भी हो देन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड कि सोडियम और पोटेशियम की बुक में किसके साथ बता रही, केवल कोल्ड वाटर के साथ। आई एम एक्सप्लेनिंग विथ हॉट वाटर के साथ भी क्या होगी। कोल्ड वाटर के साथ हम वॉलेंटली लिख रहे हैं, तो हॉट वाटर के साथ स्लाइटली हम क्या लिख देंगे, हाईली वॉलेंट। यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ एक्जोथर्मिक लिखेंगे, तो हॉट वाटर के साथ मैं सोडियम का क्या लिख दूँगी, हाईली एक्जोथर्मिक। सो बस ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, देन डोंट वरी, आप चिंता छोड़ के जो मैंने वीडियोस कराई है वॉच वंस और 2 टाइम्स, you will feel that chemistry is very very easy. Next students, we will see the next topic here. Now you will see the reaction. पिछली जो reaction थी बेटा मैंने बैलेंस नहीं की, you can balance the reaction. Now you have understood how we will balance the reaction. Now student, we have seen metals like aluminium, iron, zinc do not react. अब सोडियम रिएक्ट हो गया था, पोटेशियम रिएक्ट हो गया था, कैल्शियम भी रिएक्ट हुआ बेटा, किसके साथ, कोल्ड के साथ, कोल्ड वाटर। बट मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हुआ था, हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर। बट स्टूडेंट नाउ व्हाट इज कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये क्या है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये ना ही हॉट नॉर नाइदर कोल्ड नॉर हॉट वाटर, किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा। ये किससे रिएक्ट हो रहा है, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जी लिख रखा है, जी मीन्स व्हाट, वाटर। अब यहाँ पे किस स्टेट में स्टूडेंट, गैसियस स्टेट में है, रिमेंबर दिस टर्म, ओके। यहाँ पे ये वाटर किस स्टेट में है, जी गैसियस स्टेट में।
वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर 1 हाउ कैन वी मेक द रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो इसी तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड है, एस लगा दिया, आयरन सॉलिड स्टेट है, एस लगा दिया। नाउ वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, वी विल राइट एल। वाटर इज इन आइस स्टेट, then we will write here solid. Now water is in gaseous state, then I have written here Z. Okay, so ये मेटल्स है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। इसका मतलब ये किससे रिएक्ट नहीं होते, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर, दे रिएक्ट विद द स्टीम। ओके, नाउ वी विल सी। इसका मतलब सोडियम, जो सोडियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर हमने कैल्शियम को अरेंज कर सकते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो गया। फिर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कर सकते हैं, हॉट वाटर के साथ हो गया। अब हम एल्यूमिनियम और आयरन को देखेंगे स्टूडेंट कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। ये दोनों हॉट वाटर मीन्स गैसेस स्टेट के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। सो व्हाट दे विल मेक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सेम हाइड्रोजन गैस हॉट वाटर के साथ। दे आर नॉट मेकिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा था, तो स्टीम के साथ क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, मेटल। जब वाटर गैसेस स्टेट में होगा, मेटल लाइक विच मेटल, लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। सो ये मेटल स्टूडेंट्स गैसेस के साथ, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर रिएक्ट करेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो इस तरीके से एल्यूमिनियम एंड आयरन। बट स्टीम के साथ अगर हम देखेंगे ना स्टूडेंट इसको, एल्यूमिनियम और आयरन को, सो इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन यू विल से एल्यूमिनियम स्टीम के साथ फास्टली रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को स्टीम के साथ, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स फास्टली बबल्स हो रहे थे। बबल्स क्या हो रहे हैं, बिल्कुल फास्ट बन रहे हैं, फास्ट बबल बन रहे हैं बेटा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट, ज़्यादा एल्यूमिनियम वाली है कंपेरिजन टू द आयरन। सो मैग्नीशियम के बाद मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ एल्यूमिनियम, और यहाँ पे फिर क्या रह गया बेटा, आयरन। अब हमें देखना है लेड, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अब ये लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर से तो रिएक्ट नहीं करते, ना ही हॉट, कोल्ड और स्टीम। सो इनको हम फर्दर किससे देखेंगे, एसिड के साथ। okay, we will see all these metals with the reaction with the acid. So now once we will see the topic anodizing, एक बार जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियोस रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड हम बाद में देखेंगे। सो बेटा अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एनोडाइजिंग की और फिर इस मेटल्स की। सो व्हाट इज़ एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या है बेटा, आई टोल्ड कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, सी सम मेटल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, सी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सरफेस ऑफ द मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, उनके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये किससे कवर्ड हो जाते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। नाउ स्टूडेंट प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल, ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है ना, ये मेटल को प्रोटेक्ट कर रही है फर्दर ऑक्सीडेशन से। जो ये प्रोटेक्टिव लेयर है ना स्टूडेंट्स, वो मेटल को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन से। सो इन मेटल्स पे कौन सी लेयर आ जाती है, ऑक्साइड लेयर, जो मैंने नाम लिए मेटल्स के। सो एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड मैग्नीशियम। सो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड पतली से, और इनके ऊपर क्या है बेटा, एक ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती इनका। नाउ स्टूडेंट एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर इन सब में से जो बेस्ट मेटल है जिसकी ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज़ बेस्ट इज़ द एल्यूमिनियम। इसीलिए हमने यूटेंसिल्स वगैरह हम बनाते हैं बेटा एल्यूमिनियम की, ताकि जो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर आ जाए, ऑक्साइड लेयर आ जाए, तो उसके ऊपर कोई भी एसिड या हम कुकर के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो उससे रिएक्ट ना करे, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या एक मेटल है, और मेटल के अंदर अगर कोई एसिड, मान लीजिए हमने कोई सब्जी पका रहे हैं उसके अंदर एसिड है, कोई भी एसिड हो सकते हैं, वो चीज़ जो खट्टा होगी उसके अंदर तो एसिड होगी, तो उसे रिएक्ट करके उसको सब्सटेंस को, हमारे फूड को क्या बना सकता है, मीन्स पॉइजनिंग हो सकता है, फूड पॉइजनिंग। दैट्स वाई व्हाट विल दिस एल्यूमिनियम से बने होते हैं, वो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। नाउ यू विल सी द एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, मीन्स एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बना लेते हैं, एनोड,
एल्यूमिनियम की रॉड को हम ले लेते हैं एनोड, ठीक है। और एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। सो एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर आ जाती है, थिक। सो थिक ऑक्साइड लेयर लेकर ही आना एल्यूमिनियम पर क्या होगा, उसको बोलते हैं हम एनोडाइजिंग प्रोसेस। और नेचुरली जो एल्यूमिनियम बाहर रखे होते हैं हमारे किचन के अंदर, कोई भी बाहर में, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसके ऊपर बेटा पतली थिन लेयर आती है, हमेशा थिन लेयर आती है। तो ये थिक लेयर क्या है, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी। सो दैट्स वाई now you will see this aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air से exposed होती है thin oxide layer है, जो कि ये जो aluminium oxide है ना, coats make it further corrosion, इसका further corrosion नहीं होगा, ये जो thin oxide layer है इसका corrosion नहीं होगा कभी भी, ओके। इसलिए एल्यूमिनियम मेटल्स का कोरोजन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। ना यू विल सी ये थिक ऑक्साइड लेयर कैसे आती है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग प्रोसेस से हम क्या लेते हैं, वन इज़ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल हमने ले लिया, जिसको हमें एनोड, उसको हम क्या बना लेते हैं बेटा, एनोड। और एक हम क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, एनोड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, एनोड हमने किसको लिया था, एल्यूमिनियम को हमने एनोड मान के लिया था। और उसके ऊपर इस एनोड एल्यूमिनियम को हमने किसके अंदर डाल दिया था, इलेक्ट्रोलाइज्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। देन व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड, एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी वो उससे रिएक्ट करेगी, किससे, एल्यूमिनियम से, और उसके ऊपर थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर लग जाएगी। उसके ऊपर कैसी लेयर लगेगी बेटा, थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। सो दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी, इस ऑक्साइड लेयर को हम डाई भी कर सकते हैं, डायमंड्स अलग अलग कलर से हम इसको कर सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम आर्टिकल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव फिनिशिंग मिल सकती है। now you hope so what we have seen in this reactivities in this topic कि metals ऑक्सीजन के वाटर के साथ, मेटल्स कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए थे, मेटल वाटर के साथ भी रिएक्ट किए हैं, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्रोक्साइड बना, मेटल पहले वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ फर्दर वाटर के अंदर ही रिएक्शन हो जाएगी, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बट सोडियम और जो पोटेशियम है ये ज़्यादा बहुत रिएक्टिव मेटल है, इनको वाटर के अंदर डालते ही व्हाट विल हैपन, दे विल कैच फायर बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस। सो इसलिए इनको हम किसके अंदर, कैरोसिन के अंदर प्रिजर्व करते हैं, कैरोसिन अंदर के हम इसको स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हैं हम इनको कैरोसिन के अंदर, बिकॉज कैरोसिन के अंदर ना ही इनको ऑक्सीजन मिलेगी ना ही इनको वाटर मिलेगा, एंड दे विल नॉट रिएक्ट। देन वी हैव सीन कैल्शियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो किया है, बट इट विल रिएक्ट लेस वायलेंटली एंड मेक दिस वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड बट इज दिस वन स्टार्ट फ्लोटिंग। क्यों फ्लोटिंग शुरू की, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एंड विच विल स्टिक विद द सर्फेस ऑफ द मेटल्स, एंड सेम रिएक्शन यू विल सी ऑफ मैग्नीशियम ऑल्सो, जो मैंने लिखी थी, ओके। एंड देन व्हाट वी हैव सीन इन द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दैट एल्यूमिनियम जो था इट विल नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर, बट किससे रिएक्ट किया, स्टीम से। स्टीम मीन्स वाटर की थर्ड फॉर्म, आपने देखा हो ना, आइस फॉर्म भी होती है, सॉलिड लिक्विड फॉर्म में हम वाटर जो हम पीते ही हैं लिक्विड में, एंड स्टीम फॉर्म में वाटर से, स्टीम वाटर की जो गैसियस स्टेट है उसके साथ एल्यूमिनियम और आयरन मेटल ये रिएक्ट हुए थे, ओके। सो यू विल सी द रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बनाया बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, आयरन ने वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। I hope this topic is clear. Now I will ask 2 questions, students. So ready for this question? So what is the first question, student? I am writing here. So which is the most reactive metal among the following? Which is the most reactive metal? विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से बताना। सो MCQs आई एम प्रोवाइडिंग यू,
One is copper. I'm writing only symbol. B, lead. C, that is silver. D, that is student sodium. Okay, so which is the most reactive metal? Copper, lead, silver, sodium. Now next question is, students, I'm writing here question number 2. So question number 2, name a metal which start floating. I'm writing here, which metal start floating when react with water. So I'm giving you the 4 option: aluminium, B, iron, C, potassium, D, calcium. Aluminium, iron, potassium, calcium. Okay, you can give your answer in my comment box, and thank you students for watching my videos. So thank you, and keep doing your keep watching the videos and doing the questions regularly. Do the questions regularly.